جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے روشن تاریخ کے سلسلہ میں آج پھر ہم اس کی جو 12ویں قسط ہے وہ لے کر حاضر ہیں۔ ابھی تک ہم نے جو ہے وہ خلجی خاندان کا ذکر کیا، پہلے خاندان غلامہ کا ذکر بھی ہوا، غوریوں کا ہوا، غزنویوں کا ہوا، اور خلجیوں کے آخری جو حکمران تھے وہ بڑی ہی قسم پرسی کی حالت میں انہوں نے بڑی تباہی کر دی تھی۔ اور پھر جو نو مسلم تھا خسرو ملک، اس نے جو ہے نا جب اقتدار پہ قبضہ کیا تو وہ چونکہ منافق تھا اور اس نے جو ہے نا وہ سارا نظام ہی درم برہم کرنا شروع کر دیا۔ تو پھر اس کے دربار پہلے خلجیوں کے دربار میں ہی علاؤ الدین خلجی کے دور سے ہی غازی بیگ نام کا ایک تغلق جو ہے نا، غازی بیگ تغلق نام کا ایک آدمی تھا جو بعد میں غیاث الدین تغلق جو ہے نا وہ بنا۔ تو غازی بیگ تغلق جو ہے یہ بھی ترک نسل سے تھا اور بڑا ہی بہادر تھا۔ ویسے وہ لاہور کا گورنر بھی جو ہے نا وہ رہا، اور پھر دیپال پور کا جو ہے نا وہ گورنر بھی رہا۔ تو اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ خسرو ملک جو ہے یہ تو بالکل ساری سلطنت کو تباہ کر گیا ہے، تو اس نے پھر ملتان کا جو گورنر تھا کشلو خان، اس کو لکھا، باقی بھی سارے جو گورنر تھے مختلف جو اس کے تعلق واسطے والے تھے ان کو اس نے اکٹھا کیا۔ اس نے کہا کہ میں اس کے خلاف بغاوت کرنا چاہتا ہوں تو آپ میرا ساتھ دیں۔ تو کچھ نے ساتھ دیا، کچھ نے معذرت کی، مگر اس نے پھر آخر خسرو ملک کو جو ہے نا وہ اس پہ چڑھائی کی دلی کے اوپر اور اس کو شکست دی۔ خسرو ملک باغ کے ایک جو ہے نا وہ باغ میں چھپ گیا تھا، اور پھر کوئی جب بھوک نے تنگ کیا تو وہ باہر نکلا تو باغبان سے کہا کہ مجھے کچھ کھانے کو دو، تو اس نے اپنے نہ دیا کچھ، تو اس نے پھر اپنی انگوٹھی اتار کے اسے دی کہ یہ گروی رکھ لو اور مجھے کچھ کھانے کو دو۔ تو وہ باغبان جب وہ انگوٹھی لے کر بازار میں گیا اس کو بیچنے کے لیے تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ اتنی قیمتی انگوٹھی اس کے پاس کہاں سے آئی ہے۔ تو پھر وہ جو غیاث الدین تغلق کا جو بیٹا تھا جونا، جو محمد بن تغلق بنا بعد میں، تو اس کو غیاث الدین نے بھیجا کہ جاؤ اس کو گرفتار کر کے لاؤ خسرو ملک کو۔ تو خسرو ملک کو گرفتار کر کے لایا گیا تو اس نے آ کے کہا کہ میں بھوکا ہوں، تو غیاث الدین تغلق نے اسے کھانا کھلایا، شربت پلایا۔ تو پھر اس کے بعد کہا کہ جس طرح تم نے جو ہے نا وہ قتل کیا تھا جو ہے نا قطب الدین کو، اسی طرح اسی جگہ لے جا کر اس کو قتل کر دو، اور اس کو مروا دیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد چونکہ خلجیوں میں تو کوئی رہا نہیں تھا تو پھر گیا اس نے جو غازی بیگ تغلق تھا اسی نے غیاث الدین تغلق کا لقب اختیار کیا اور دلی کے تخت پہ جو ہے نا یہ بیٹھ گیا۔ تو یہ 1321 سے 1325 تک یہ غیاث الدین تغلق جو ہے یہ رہا حکمران جو ہے وہ دلی کا۔ تو غیاث الدین تغلق جو ہے یہ نرم دل آدمی تھا اور بڑا جنگجو تھا، اور یہ اس نے سلوک کرنے والا تھا، درگزر کرنے والا تھا۔ تو پہلے جس طرح بتایا کہ علاؤ الدین خلجی کے دور میں بہت ٹیکس لگ گئے تھے، لوگوں کو دولت رکھنے کی اجازت نہیں تھی، امراء کو سفید کپڑے پہننے کی اجازت نہیں تھی، جزیہ ٹیکس، اور ویسے نہریں بھی اس نے بنوائی تھی تو وہ ٹیکس بھی، اریگیشن ٹیکس بھی، اور بڑے قسم کے ٹیکس جو ہے نا یہ ہمیشہ سے لگتے رہے۔ ویسے کشمیر میں بھی ایک دفعہ کشمیر کے مہاراجا نے چولہا ٹیکس بھی لگا دیا تھا کہ جس گھر میں چولہا جلے گا اس سے بھی ٹیکس لیا جائے گا۔ تو اس طرح بہت سے ٹیکس اس نے لگا دیے تھے زمینوں کے اوپر بھی، اور چاہے فصل ہو یا نہ ہو ٹیکس دینا پڑتا تھا جو ہے نا زمینداروں کو، کاشتکاروں کو۔ تو اس نے غیاث الدین تغلق نے جو ہے وہ تھوڑی نرمی کی اور لوگوں کو کچھ آسائش دی تاکہ وہ جو ہے وہ زیادہ وہ تنگ نہ ہوں۔ تو لیکن اس نے بھی ایک انتظام ضرور رکھا تھا کہ یہ اتنے زیادہ امیر نہ ہو جائیں کہ یہ بغاوتیں کرنا شروع کر دیں، مگر یہ بالکل پس کے وہ مارے بھی نہ جائیں۔ تو اس طرح اس کا جو دور تھا وہ بڑا اچھا دور تھا۔ مگر جو اس کا بیٹا تھا
जूना नाम भी था, उगलू भी इसका नाम था शुरू में, बाद में वही फिर मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना वो बना, जो जानशीन हुआ फिर गयासुद्दीन तुगलक का। और ये तीन ही मशहूर थे तुगलक्स में, गयासुद्दीन तुगलक और फिर मोहम्मद बिन तुगलक और फिर फिरोज़ शाह तुगलक जो है, यही मशहूर थे। तो इनको जो जूना था या मोहम्मद बिन तुगलक बना बाद में, उसको गयासुद्दीन तुगलक ने भेजा वरंगल फतह करने के लिए। ये देवगिरी जो उधर इलाके हैं साउथ इंडिया के, वो जो है ना उनको, क्योंकि ये बगावत कर दिया करते थे, खिलजी ने भी जो है ना वो उनको ज़ेर किया था, मगर वो जब भी कोई हुक्मरान बदलता था तो वो बगावत कर दिया करते थे। तो वो दूर भी काफ़ी था, तो वहाँ कोई कहते हैं कि काफ़ी टाइम लग जाता, कोई 1 महीना से ज़्यादा लग जाता था वहाँ तक सफ़र करने में। तो ये जो जूना मलक था या मोहम्मद बिन तुगलक था, इसके दिल में शुरू से ही बेईमानी थी। जिस तरह के उधर जो है ना वो अलाउद्दीन तुगलक ने अपने चचा जलालुद्दीन तुगलक को किस तरह जो है ना वो शुरू से ही नज़र रखी हुई थी और कत्ल कर दिया, इसी तरह इसने भी नज़र रखी हुई थी कि मैं जो है ना वो अपने बाप का तख्ता पलट करके तो मैं वो तख्त पर जो है ना वो बैठ जाऊँ। तो उसने अपने जो है ना मसाहिब एक बनाए हुए थे, कोई 9-10 लोगों का एक ग्रुप था जो इसके करीब था, जो इसकी इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, तो उनको साथ लेकर ये चलता था। तो ये जब वहाँ औरंगल गया तो वहाँ इसने मशहूर करवा दिया कि बादशाह फौत हो गया है। कम्युनिकेशन इतनी नहीं होती थी उस वक़्त, तो उसका मकसद ये था कि ये लोग मेरे करीब आएँ, मेरी बैत करें और मुझे जंग भी ना करनी पड़े, और उसके बाद जो है ना वो मैं जो है वो कर लूँ, जो है ना वो कब्ज़ा कर लूँगा तख्त के ऊपर। तो इस तरह कुछ लोगों को उसने अपने साथ मिलाया। तो पहला हमला हुआ था, ये असल में लड़ना ही नहीं चाहता था, तो इसको तो एक किस्म की शिकस्त हुई या ये पीछे हट गया। तो फिर गयासुद्दीन तुगलक ने अपनी और आर्मी भेजी और फिर इसको भी जो है ना वो रीइंफोर्स किया और इसको जूना को कहा कि फिर हमला करो दोबारा। फिर उसने हमला किया और फिर फतह हुई थी। तो उधर ये बंगाल अभी तक इनके कब्जे में नहीं आया था। वैसे खिलजियों के दौर में तकरीबन पूरा हिंदुस्तान, सिर्फ जो थोड़े इलाके थे जो साउथ के, वो जजिया देना शुरू हो गए थे, मगर उन पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। तो बंगाल में भी 3 भाई थे, जो उनमें भी एक गयासुद्दीन था, एक शमसुद्दीन था, एक नासिरुद्दीन था। गयासुद्दीन बड़े नाम आएंगे, खिलजियों में भी थे, गोरियों में भी थे और तुगलकों में भी थे। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है ये वहाँ गया बंगाल में, ताकि वहाँ जो है ना वो इनको शिकस्त दे और इन पे कब्ज़ा करे जो है ना वो बंगाल के ऊपर। तो वहाँ से जब वो वापस आ रहा था तो उस वक़्त उसने अपने बेटे को, इसी मोहम्मद बिन तुगलक को पैगाम भेजा कि मैं इस्तकबाल की तैयारी करो। तो ये जो लीडर होते हैं, मेरे ख्याल में, मुझे पता है, मैं आज़ाद कश्मीर में रहा हूँ, कुछ वज़ीरों के साथ मेरे दोस्त थे, तो वो जब कहीं अपने इलाके में जाते थे तो पहले फ़ोन किया करते थे अपने डीसी को, बाकी सारों को, कि मेरे इस्तकबाल के लिए आओ, बंदे इकट्ठे करके लाओ। तो मुझे भी याद है कि किस तरह वो लोगों को इकट्ठा करवाते थे। तो ये तो बादशाह था, तो इसने अपने बेटे को कहा कि मेरे इस्तकबाल के लिए एक महल बनवाओ, चबूतरा बनवाओ दिल्ली के बाहर। तो वो सुल्तानपुर जगह थी, वहाँ उसने फिर रातों रात 3 दिन लग गए थे, वैसे 3 दिन में लकड़ी का चबूतरा तैयार करवाया। मगर वो चबूतरा क्या था असल में, वो अपने बाप के खिलाफ एक फंदा था और अपने बाप को कत्ल करने का एक मंसूबा था जो इसने बनाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने या जूना ने, एक ही नाम है। तो इसने, जो इसका इंजीनियर था, जो आर्किटेक्ट था, अहमद बिन अयाज, उसको बड़ा माहिर था, मगर उसको कहा कि इस किस्म का चबूतरा बनाना है कि ताकि जब हम उसको गिराना चाहें, यानी उसके एक जाविया पे या एक जगह पे जब कोई हाथी चढ़े या कोई वजन पड़े तो वो सारा गिर जाए। तो इसने बड़ी महारत से वो जो है ना वो महल या चबूतरा, जो भी उससे आप कहें, वो बनवाया। और जब जो है ना इसका बाप गयासुद्दीन तुगलक वापस आया तो बड़े शाहाना तरीके से जाके उसका इस्तकबाल किया और गले में हार डाले, सारा करके। तो वहाँ जब वो उस चबूतरे के ऊपर आया तो उसने अपने बाप से कहा कि मैं
हाथी जो है ना वो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। तो वो हाथी को लाया गया। तो वो हाथी जब जो है ना वो उसको जगह ऐसी पे खड़ा किया गया उस हाथी को कि जब वहाँ जाके उसको खड़ा होना था तो उस महल ने या उस चबूतरे ने गिर जाना था। तो ये इब्न बतूता ने भी इसका जिक्र किया है कि वो हाथी जब आया तो उससे पहले कमाल महारत से ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना उस चबूतरे से निकल गया। और कहते हैं कि उस वक्त शेख रुकनुद्दीन साहब मुल्तान वाले बड़े वली थे, बुजुर्ग थे, वो भी वहाँ बैठे हुए थे। तो इस जूना उनका मरीद भी था, ये मोहम्मद बिन तुगलक बड़ी कदर करता था उनकी। तो इन्होंने पीर साहब को बड़ी महारत से वहाँ से निकाल लिया। इसने कहा कि पीर साहब असर की नमाज का टाइम हो गया है तो आए हम नमाज पढ़ने चलते हैं। उनको उठा के बाहर ले आया खुद भी, और जो ही पीछे वो हाथी वहाँ आके खड़ा हुआ तो वो धड़ाम से सारा कुछ जो है ना वो गयासुद्दीन के ऊपर गिर गया। गयासुद्दीन का जो बेटा था महमूद, छोटा बेटा, वो भी साथ था। तो दब गए सारे उस मलबे के नीचे। और कहते हैं कि जब बाद में खोद के इनको निकाला गया तो उस वक्त ये गयासुद्दीन अपने बेटे के ऊपर झुका हुआ था और उसको बचाने की यानी बाप ने कोशिश की होगी अपने बच्चे को, तो वो उसकी उठा के बाहर निकालने की कोशिश की होगी। जिस तरह ये कल परसों जो तुर्की में शाम में ज़लज़ला आया है, तो कितने वाक़यात हैं कि लोग किस तरह 3-3 4-4 दिन के बाद भी ज़िंदा निकले हैं, 5-5 दिन के बाद भी ज़िंदा कुछ लोग जिनको खुदा ने बचाना होता है वो बच गए हैं। वो भी बहुत तबाही हुई है वहाँ। तो इस तरह एक बेटे ने अपने बाप को जो है वो इस तरह वो कत्ल कर दिया और तख्त जो है ना वो उससे छीन लिया। वैसे मुख्तलिफ राय हैं। इब्न बतूता ने तो सारा इल्ज़ाम इसी के ऊपर लगाया है, जूना के ऊपर, मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर, कि इसी ने ये सारा बनवाया था। कुछ मौरखीन कहते हैं कि नहीं, वो खुद गिर पड़ा था, वो महल जो है वो इसका कसूर नहीं था। तो लेकिन बहरहाल बाद में इसने फिर वो जो अहमद बिन अयाज था, ख्वाजा जहां जिसको कहा गया, उसको ये नवाजता भी रहा मोहम्मद बिन तुगलक। तो वल्लाह आलम, हो सकता है कि ये साजिश हुई हो, लेकिन ये इक़्तिदार पे नज़र रखना चाहता था और इसने रखी। और अपने बाप को इसने जो है ना वो इस तरीके से जो है ना वो यानी जिस तरह कहते हैं ना कि वो फूल दिखा के गले लगा के कत्ल कर दिया, तो वो काम इसने किया। और उसके बाद खुद जो है ना वो इक़्तिदार पे वो कब्ज़ा कर लिया। तो अब अगली जो किस्त है इसमें हम मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज़ शाह तुगलक का जो है ना वो जिक्र करेंगे और फिर देखेंगे कि इनका ख़ात्मा कैसे हुआ। ये तुगलक जो डायनेस्टी थी ये बहुत ज़्यादा, तकरीबन 90 या 100 साल रहा इनका भी। खिलजी भी कोई 83 साल रहे थे। तो ये तीन ही नामवर थे, गयासुद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज़ शाह तुगलक। और उसके बाद बाकी सारे जो है ना वो नायल और नकारा ही थे। तो इस तरह अब इस किस्त को यहाँ ख़त्म करते हैं। आगे हम मोहम्मद बिन तुगलक और फिर फिरोज़ शाह तुगलक का जो है ना वो जिक्र करेंगे, और ये कि ये तुगलक ख़ानदान किस तरह ख़त्म हुआ और उनकी जो रियासत थी वो किस तरह तबाह हुई हिंदुस्तान की। और उसके आगे जो आए तैमूर लंग का जिक्र करेंगे और सैयद जो आए उनका जिक्र जो है ना वो चलेगा। तो अगर आपने हमारी पहली किस्तें नहीं देखी तो आप रोशन टीवी को सब्सक्राइब करें, और जो रोशन तारीख़ है इसके सिलसिले में जो हमारी पहली किस्त से अगर आप शुरू करके सारी देखें तो ये सारी कड़ियाँ मिलती जाएंगी और आपको पूरी तारीख़ जो है वो समझ आती जाएगी। तो अगली किस्त में हम फिर जिक्र करेंगे तुगलक डायनेस्टी के जो बाकी फरमानवार है।